मिला है कि प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवणम करने के लिए हम लोगों को प्रताप करने के लिए, हमें हम पर कृपा दर्शाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से गंगा जी श्री हरि के पद कमलों से निकल के सारे लोगों को, 3 लोगों को का उद्धार करती हैं, उन्हें शुद्ध करती हैं, just as the holy Ganges emanates from the lotus feet of Lord Shri Krishna and purifies the 3 planetary systems. Similarly, इस कृष्ण कथा के श्रवणम से 3 प्रकार के लोग, उनका उद्धार होता है। पहले हैं जो स्पीकर हैं, यानी कि जो वक्ता हैं। We have such a divine soul here. His Grace Achal Krishnadas Prabhu ki Jai. The second is the audience, which is all of us here who are the Shrotagan. And the third is the inquirer, and we will have the opportunity at the end of the divine lecture given by Achal Krishnadas Prabhuji to inquire and ask submissively a lot of questions if we have them after hearing the lecture. And this is the Pritchak, which is the the devotee who inquires submissively. And the topic today is a very, very beautiful topic of surrender, of complete surrender. Atma Nivedanam. And this is going to happen for not just 1 day, not 2 days or 3 days, but 7 beautiful, wonderful, glorious days, especially after this Ram Navami, Sri Ram Navami festival, which has finished yesterday. So we are still going to have a wake of 7 glorious Bhagavad Sapta days, so that we can remember Lord Sri Ram, Lord Sri Krishna, and remember that we have to serve wonderful devotees who visit Sydney, who give us their divine association. So without much ado, I will give a brief introduction of His Grace Achal Krishnadas Prabhu. His Grace Achal Krishnadas Prabhu was born in India, and he is the disciple of His Holiness Radha Govind Maharaj Ji. And it's not a wonder, because Radha Govind Maharaj Ji, Swami Maharaj, is such a beautiful and wonderful divine soul. He gives such nectarian lectures. I listen to him very, very regularly. And we are very, very fortunate that His Grace Achal Krishnadas is his disciple. And of course, as the Guru, so is the Chela. So, just so that we know, Prabhu is born in India. He was born in a Brahmin family, and when he was doing his higher education, जब वो अपनी उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी में कर रहे थे in the city of Mumbai, which is the city of Bollywood. In such a scenario, when he was such a young person, he was given the association of devotees of ISKCON who were preaching in universities. और ISKCON devotees के संपर्क में आके His Grace अचल कृष्णदास जी बहुत ही प्रभावित हुए और ISKCON यात्रा से सन 2000 में, which is around 23 years ago, जुड़ गए. 23 years ago, Prabhu must have been a very young devotee, but at such a young age, he was so full of wisdom that he left his education of the higher education at university life, and he joined the service of Sri Radha Ras Bihari in ISKCON Juhu temple, which is such a renowned temple, which we know so much about from Srila Prabhupada, and the way the temple was built. It has a divine history in itself. And His Grace Achal Krishnadas joined it full time, leaving his material life behind, and he remained a faithful servant of Lord Sri Radha Ras Bihari from then on. Prabhu has actively served in the ISKCON Youth Forum and served as the new Bhakta director at that young age. And in 2008, Prabhu came and served as head pujari in Auckland, New Zealand, in the new Barsana Yatra. His unique qualification, as I just witnessed as I entered at 6:30, was him performing the samskara. He was doing a puja, performing a beautiful havan, and he is very, very good at performing samskaras, including weddings, which he does according to the Vaishnava Vidhi. So Bhagavad Katha as well as Ram Katha are very much his, something he is very, very adept at.
and because of this he is so renowned. इनका नाम देश विदेश में प्रचलित है, जैसे कि इंडिया, फिजी, न्यूजीलैंड और अब ऑस्ट्रेलिया में भी. ऑफ कोर्स इनके लेक्चर यूट्यूब पे आई सॉ फ्यू क्लिप्स ऑन लिटिल अदर platforms as well. But I realize that Prabhu is not an ordinary soul, and we are very blessed, very, very fortunate to welcome His Grace Achal Krishnadas Prabhu ki Jai. Can we all raise our hands together and say Hari Bol 3 times to welcome Prabhu ji? Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. All glories to you, Prabhu. साष्टांग दंडवत प्रणाम. श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की भागवत सप्ताह महामहोत्सव की. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फिर से सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में हमारा प्रणाम. और आप सभी से प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दें कि जिससे हम भगवान की कथा कर सकें. ऐसा कहा गया है कि बिना वैष्णवों के आशीर्वाद के कोई भी कार्य संभव नहीं है. जब साधुओं का, वैष्णवों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है तो जो कार्य असंभव हैं वो भी सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं. तो इसीलिए जीवन में कोई भी कार्य जब प्रारंभ किया जाए तो सबसे पहले वैष्णवों के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, गुरु के चरण कमलों का ध्यान किया जाता है और गुरुदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए. गुरुदेव कृपा करके हम सभी को भगवान की सेवा में लगाते हैं. श्री प्रभुपाद जी के चरणों में, गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना है कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं और केवल सुयोग्य वाक्य ही वाणी से निकलें. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं. श्री गुरु दीनतारिण श्री चैतन्य महेश्वर. यदि गुरु की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है और यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो वो चलने लगता है और अंधा व्यक्ति वो देखने लगता है. ये बात केवल श्लोक में नहीं कही गई है बल्कि ऐसा है. एक शिष्य थे रामानुजाचार्य जी के. लोग जानते हैं कि रामानुजाचार्य जी एक बहुत बड़े वैष्णव हैं, ना, एक बहुत बड़े आचार्य हैं. तो उनके एक डिसाइपल थे जो धोबी थे. धोबी समझते हैं? पहले के ज़माने में जो लोग कपड़े इत्यादि धोते थे उनको धोबी कहा जाता है. अभी तो सब वॉशिंग मशीन हमारा कार्य करती है लेकिन पहले के ज़माने में धोबी लेकर जाते थे कपड़े घर से. तो वो धोबी थे, ज्ञान नहीं था उनको. एक दिन रामानुजाचार्य जी ने उनको अपने पास बुलाया कि यहाँ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास. और उन्होंने कहा कि आज का प्रवचन तुम करोगे. इतने बड़े आचार्य के सामने एक धोबी कैसे प्रवचन कर सकता है. लेकिन रामानुजाचार्य जी का आशीर्वाद था, उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने कहा जो आज्ञा. और जो कुछ नहीं जानते थे उनके मुख से परम पवित्र भगवान के उपदेश निकलने लगे और बहुत ही सुंदर वाक्यों में, संस्कृत के साथ में, सुगठित वाक्य में उन्होंने प्रवचन किया. तो सारे शिष्य देख के हैरान हो गए कि इतना ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं है जितना धोबी के पास आ गया. तो जो श्लोक हमने आपको सुनाया कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम. श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य महेश्वरम.
ये केवल कहीं लिखा है और ऐसा नहीं है, बस लिखा है, लोग पढ़ते हैं। आजकल तो ऐसा ही मानते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं प्रवचन में और ये तो इनका काम है प्रवचन करना, इनका काम है बोलना, ये प्रवचन करके चले जाएंगे, फिर हमें जो करना है वो करना है ना। तो ऐसा नहीं है, जो बात लिखी गई है शास्त्र में वो सत्य है, जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ सच है। तो इस कलयुग के कल्मश को नाश करने के लिए स्वयं भगवान के द्वारा एक शास्त्र की रचना की गई है। इस पृथ्वी में बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बहुत फेमस हैं और उन सब का शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाएं हैं। एक तो है भगवान की वाणी जिसे भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता एक ऐसा गीत, एक ऐसा सॉन्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाया है। तो भगवत गीता, भगवान के मुख से जो वाणी निकली है उसको भगवत गीता कहते हैं। और जो भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी भी लीलाधारी हैं, वो लीला करते हैं। तो भगवान ने जिन लीलाओं को किया है, अब उनको कौन लिख सकता है? भगवान के अलावा तो और कुछ लिख नहीं सकता है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं शक्त्यावेश अवतार के रूप में, व्यास देव जी के रूप में, और लीलाओं को लिपिबद्ध करते हैं, लिख देते हैं। तो भगवान ने लीला की, भगवान ने उन लीलाओं को लिखा, अब गाए कौन? तो गाने के लिए भी तो कोई महान व्यक्ति होना चाहिए। तो स्वयं नंद नंदन कृष्ण वो सुखदेव गोस्वामी जी के रूप में आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और कोई दूसरे नहीं हैं, बल्कि भागवत में लिखा गया है वो स्वयं नंद नंदन हैं। तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी इन लीलाओं को गाते हैं, इन लीलाओं को कहते हैं। और परीक्षित महाराज जी के सहित हजारों लाखों ऋषिगण, मुख्य रूप में वहाँ पे कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे, जिनको कहा जाता है नैमिषारण्य में सोनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे थे। सूत गोस्वामी जी जब कथा कर रहे थे तब बैठे थे 88,000 ऋषिगण। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे उस समय सूत गोस्वामी भी थे, 88,000 ऋषिगण भी थे, और भी अनेक लोकों से बड़े बड़े ऋषिगण आए थे। देवता आए अमृत का कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर आए थे। आप लोग जानते हैं अमृत कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से। यहाँ के बाद हम लोग मेलबर्न जाएंगे ब्रिस्बेन के बाद, तो वहाँ पे समुद्र मंथन की कथा होगी, यहाँ से अमृत निकला। तो क्षीर सागर का मंथन हुआ। क्षीर सागर, क्षीर का अर्थ होता है मिल्क, मिल्क ओशन। उसका जब मंथन किया गया तो वहां से अमृत निकला। भगवान ने अमृत पिलाया देवताओं को, तो वही अमृत लेकर आए थे। और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप ये अमृत ले लीजिए। इस अमृत को पीकर परीक्षित महाराज मरेंगे नहीं, तक्षक क्या उससे भी भयंकर भयंकर से स्नाग जी भी डस ले तो ना मरेंगे, ऐसा कहते हैं। ये पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और बदले में आप हमें कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर इमीडिएटली, अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। भागवत कथा सुनने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं है जो इसका क्रय और विक्रय करता है। यदि हम अपनी फीस रख दें कि हम 5 लाख रुपए लेंगे तब हम कथा करेंगे, तो ना हम कहने के अधिकारी हो जाएंगे, और यदि कोई पैसे दे के बुलाए कि आपकी ये फीस है, हम आपको ये फीस देते हैं, आप आ जाइए, तो ना वो सुनने का अधिकारी रह जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा निस्वार्थ भाव से की जाती है, और निस्वार्थ भाव से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी जाती है।
यदि इस तरह से श्रवण कीर्तन हो तो सुनने वाला भी वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है और कहने वाला भी वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से आपने बताया, माता जी ने बताया कि 3 लोग इसका रसास्वादन करते हैं, 3 लोग इसके पात्र हैं, कहने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला। तो ये भागवत कथा है क्या? श्रीमद् भागवत की कथा ये प्रश्नोत्तर है, ये क्वेश्चन आंसर है। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषिगण, बार बार आप सुनते हैं सौनकादि 88,000 ऋषिगण। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये सुन लीजिए कि वहां पे 88,000 ऋषिगण बैठे हुए थे, मॉन्क बैठे हुए थे। अब 88,000 ऋषिगण अगर पूछना शुरू करते, हाथ उठाते अपना, तो किस किस का आंसर देते सूत गोस्वामी? किस किस का आंसर देते? सबके उत्तर तो दे नहीं पाते सबके प्रश्नों के। तो सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, और वो कौन थे? सौनक ऋषि। सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे थे और सूत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते हैं और सूत गोस्वामी उसका उत्तर करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। 6 questions were asked by सौनकादि 88,000 ऋषिगण। तो उनका उत्तर किसने दिया? सूत गोस्वामी जी ने, जिनको एक्सप्लेन किया गया है पूरी श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है, प्रारंभ से लेके। तो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? कथा में सोना नहीं चाहिए। सोने का अर्थ होता है इग्नोरेंस। ऐसे तो हम लोग सोते ही हैं प्रतिदिन, सोने के लिए मिलता है हम लोगों को, है ना? सो सकते हैं शाम को 8-9 बजे, 10 बजे सो सकते हैं, सुबह जितने बजे चाहे उठ सकते हैं अपने अपने काम के हिसाब से। बहुत कम समय जीवन में ऐसा मिलता है जब हमें भगवान की शुद्ध वार्ता सुनने के लिए मिलती है। तो इसलिए जब कहीं भागवत कथा हो रही हो तो बड़े ध्यान से उसे सुना जाए, अपनी निद्रा को रोककर। यदि नींद आती है तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान में, कोई शर्म की बात नहीं। खड़े होना अच्छा है, कोई दूसरा व्यक्ति देखे कि आप सो रहे हैं उससे, कोई दूसरा व्यक्ति देख ले कि आप कथा सुनते सुनते सो रहे हैं, उससे अच्छा है कि व्यक्ति खड़े हो जाए। तो लोग क्या कहेंगे, देखो कितने बढ़िया से सुनना चाहते हैं, कि सोने की जगह अपने आसन से खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े हो जाइए और फिर वापस बैठ जाइए जब आप ठीक हो जाए। तो इस तरह से कथा सुननी चाहिए ध्यान से। और अगर इस तरह से कथा सुनी जाती है प्रेम के साथ, ध्यान के साथ, तो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हुए हमने एक श्लोक गाया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समानश्यते। आप लोग कहेंगे अभी अभी 9 दिन की रामायण खत्म हुई है, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ दिन के बाद आते। अभी तो हम 9 दिन कथा सुनी है रामायण की, अब थोड़ा विश्राम कर लें। लेकिन हम लोग भी 9 दिन की कथा कह के आ रहे हैं ऑकलैंड में, और अब यहाँ दूसरे दिन 7 दिन की कथा प्रारंभ करती है। तो ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, केवल 9 दिन नहीं, केवल 7 दिन नहीं, बल्कि 24 घंटे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा को 24 घंटे सुनना चाहिए। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं?
हमें तो काम पे भी जाना है, मंदिर में सेवा भी करनी है ना? प्रसाद भी बनाना है। हम 24 घंटे कैसे सुनेंगे? जितनी देर सुन सकते हैं सुनिए और बाकी टाइम उसका आचरण कीजिए, तो वो आपका सुनना ही कहलाएगा कि आपने ध्यान से सुना है। प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का भोग बना रहे हैं, प्रसाद नहीं भोग। जब हम कुक करते हैं तो क्या होता है? भोग, भोगा, भगवान को हम ऑफर करते हैं। जब निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। कैसे कैसे प्रसाद बन जाता है? भगवान आंखों से, अपने चक्षुओं से खा लेते हैं उस भोग को। तो जब बनाया तो भोग, निकाला तो प्रसाद। प्रा का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात, और दा का अर्थ होता है दर्शन। प्रभु साक्षात दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन प्रभु के प्रसाद में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है बारंबार कि प्लेट में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, उतना ही लीजिए जितना आपको खाना है, और उसको पूरा खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन, एक भक्त थे, उनका नाम क्या था? माधवेंद्र पुरी। भगवान ने उनके लिए, आप कथा जानते हैं, हम पूरी कथा नहीं बताएंगे, भगवान ने उनके लिए स्वीट राइस पीछे छुपा के रखा था, और ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि वो, ब्राह्मण बोला रोज तो हम इतना ऑफर करते थे, आज एक जो उसका एक बॉल है वो आज कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? मुझे तो याद है कि मैंने तो इतना ही किया था, एक गायब हो गया। जो रात में भगवान ने स्वप्न दिया कि मैंने अपने पीछे छुपा के रखा है, मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्र पुरी, उसको ले जाके दे देंगे। तो ब्राह्मण रात्रि में गया, खोला पीछे, तो भगवान के वस्त्र के पीछे उसको वो बॉल मिल गया, मिट्टी का। लेकर गए, मार्केट प्लेस में लेटे हुए थे माधवेंद्र पुरी, कुछ खाया नहीं था, ले जाके दिया कि ये भगवान ने आपके लिए छुपा के रखा है। और जब खाना प्रारंभ किया माधवेंद्र पुरी ने, तो इतना दिव्य था कि उन्होंने स्वीट राइस तो खाया, स्वीट राइस के साथ साथ वो मिट्टी का वो बॉल भी खा गए। हम लोग तो कोई ऐसा कर नहीं सकते, है ना? हम लोग खा सकते हैं, नहीं तो दांत टूट जाएंगे, वो टूटेगा। लेकिन वो मिट्टी का पूरा पात्र भी खा गए स्वीट राइस के साथ। क्यों? ये भगवान ने हमारे लिए रखा है, इसलिए। तो इस तरह से प्रसाद ग्रहण करते हैं भक्तगण। तो इसी तरह से हमें भगवान की कथा ग्रहण करनी है। अपने पात्रों को, कर्ण रूपी पात्रों को, इनको आप पात्र बना लीजिए, है ना? और ये सुंदर मधुर अमृत कथा आपको मिले, जिसे आप भर भर के पिए। कथावाचक भी अच्छा होना चाहिए, श्रवण करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। एक बार एक महाराज जी ज्ञान बांट रहे थे, और ज्ञान था दूध के रूप में बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति ऐसे लेकर आया कि दे दीजिए, तो यहाँ तो छेद होते हैं, तो निकल गया, दूध गिर गया। किसी ने कहा हमारे जेब में दे दीजिए थोड़ा, तो वो भी निकल गया। किसी ने कहा चादर में दे दीजिए, वो भी बह गया। तो यदि कोई वस्तु आपको दी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे रखना है ना? तो दूध को रखने के लिए आपको एक बढ़िया अच्छा बोल लाना पड़ेगा, एक अच्छा पात्र लाना पड़ेगा, उसमें आप बढ़िया से रख सकते हैं। कभी कभी हम एक कथा सुनाते हैं। आज हम आपको इसलिए भागवत महात्म्य बता रहे हैं क्योंकि आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा महात्मा होना चाहिए। एक बहुत बड़े गुरु थे, उनका नाम था रामदास जी महाराज। क्या नाम था? रामदास जी महाराज। वो शिवाजी के गुरु जी थे, और बहुत सारे उनके ब्रह्मचारी शिष्य भी थे। लेकिन वो शिवाजी से बहुत प्रेम करते थे। तो सारे ब्रह्मचारी आपस में बात करने लगे कि हम लोग विरक्त हैं, हमने अपना घर त्याग दिया ना,
पत्नी त्याग दी, किसी ने अपनी पत्नी त्यागा, किसी ने अपना घर त्यागा भगवान को प्राप्त करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आए और हमारे पास केवल एक जोड़ी वस्त्र है, ऊपर का वस्त्र है और नीचे का वस्त्र, एक कोपिन है बस। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव एक राजा को क्यों पसंद करते हैं, एक राजा को क्यों चाहते हैं? हम तो विरक्त हैं, हमें ज्यादा प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें छोड़कर ये किसको चाहते हैं? एक राजा शिवाजी को चाहते हैं। क्यों? तो ये सब बातें चल रही थी, तो शिवाजी को इतना चाहते हैं तो पता चल गया रामदास जी महाराज को। तो उन्होंने सोचा कि हम सबको ठीक करते हैं। तो एक दिन रामदास जी महाराज के पेट में बहुत दर्द हो गया, बहुत अधिक दर्द हो गया। तो सारे शिष्य परेशान, उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटी मेडिसिन ला के दी, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। तब सबने कहा अच्छा ये बहुत प्रेम करते हैं ना शिवाजी को, उनको बुलाया जाए। तो शिवाजी को बुलाया गया, शिवाजी आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका दर्द कैसे दूर होगा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वो कहते हैं कि यदि कोई शेरनी के दूध को लेकर आ जाए, किसके दूध को? शेरनी समझते हैं ना? उस दूध को लेकर आ जाए तो उसमें मैं ये पर्टिकुलर मेडिसिन मिलाऊंगा, पीऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। कैसी शर्त है? शेरनी का दूध कौन ला सकता है बताइए आप? कोई लेकर आ सकता है? कोई नहीं ला सकता। शेरनी मतलब उसके छोटे छोटे उसके बेबी होंगे, और जब छोटे छोटे उसके बच्चे होंगे तो वो किसी को पास में आने नहीं देते, और उसका कोई दूध निकाल के ले आए। फिर भी शिवाजी महाराज अपनी तलवार उठाए और उन्होंने अपने साथ क्या लिया? एक सोने का पात्र लिया, क्योंकि शेरनी के दूध को यदि आप स्टील में रखेंगे, सिल्वर में रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा। शेरनी का दूध केवल किस में रह सकता है? सोने के पात्र में रह सकता है, और किसी दूसरे पात्र में नहीं रख सकते आप शेरनी को, स्पॉइल हो जाएगा तुरंत। तो सोने का पात्र लेकर गए, और इतनी शक्ति थी उनके पास में, उन्होंने फाइंड आउट किया एक शेरनी को जिसके छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने एक हाथ से उसके सिर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उन्होंने शेरनी का दूध पिलाया। शिवाजी अपनी जान की परवाह किए बिना। आज भी इंडिया में म्यूजियम में महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराणा प्रताप की तलवार रखी हुई है, और आप जैसे लोग 2-2, 3-3 लोग मिलके भी उठाएंगे तो नहीं उठा पाएंगे। भारी तलवार, बड़ा कद था उनकी, बहुत शक्ति थी उनके पास में। तो लेकर आए, गुरुदेव जी को ऑफर किया कि आप इसको पीजिए और आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तब गुरुदेव जी सबकी तरफ देखते हैं, सारे शिष्यों की तरफ। पता चला आज मैं क्यों प्रेम करता हूँ शिवाजी, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना ये शेरनी का दूध लेकर आए। तो कहने का अर्थ है, हम ये बताना चाहते हैं कि पात्र भी वैसा होना चाहिए। किस पात्र को लेके गए थे शिवाजी महाराणा प्रताप? सोने के पात्र को, गोल्ड पॉट को लेकर गए थे, और शेरनी का दूध निकाल कर लेकर आए। तो भगवान की कथा, शुद्ध कथा को रखने के लिए अपने कानों को भी वैसा ही पात्र बनाना है, ध्यान से इसे ग्रहण करना है। तो हो सकता है कि आप लोगों में कोई कुछ दिन आ पाए, कोई 7 दिन भी आ पाए। तो कथा के अंत में अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन ये संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ होता है पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना। तो कथा में जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं, आप लोगों को मौका दिया जाएगा 5-5 मिनट कुछ कहने का। जो भी कहना चाहता है तो वो लोग बता सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा है। तो बहुत समय नहीं लेंगे और हम कथा शुरू करते हैं।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवते यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। तो आज कथा के रूप में तो भगवान हरि को अपने हृदय में बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी 3 जगह से टेढ़े हैं। गोविंद जी 3 जगह से टेढ़े हैं। हृदय में आसानी से अंदर जाते नहीं। टेढ़े हैं तो कैसे जाएंगे? लेकिन क्योंकि टेढ़े हैं, यदि एक बार हृदय में चले गए तो वापस नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है। क्यों वापस नहीं निकलेंगे? क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। तो भगवान की पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 8वें स्कंद की कथा है, कैंटो 8, और ये बहुत ही अच्छा स्कंद है। इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, जैसे समुद्र मंथन की कथा आती है, और बलि महाराज की कथा तो आती ही है जिसे हम सुनेंगे। और बलि महाराज की कथा में ही पयोव्रत की कथा है। कौन सी कथा है? पयोव्रत की कथा है। अगर किसी को इच्छा हो कि हमें अच्छा कृष्ण भावना भावित पुत्र प्राप्त हो तो वो क्या करें? तो वो पयोव्रत करें। तो पयोव्रत की कथा भी इस स्कंद में आती है, जो कम शब्दों में की जाएगी, और आप इसे पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। और जिनको भी अच्छे पुत्र की इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त हो, वामन देव जी की तरह प्रतिभाशाली हो, तो वो पयोव्रत कर सकते हैं। 12 दिन का व्रत होता है जो केवल दूध पीकर किया जाता है, मिल्क पीकर किया जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा होती है। हमने 2 बार किया है। तो प्रथम दिन लगता है कि भूख लग रही है, दूसरे दिन लगता है भूख लग रही है, लेकिन 12वें दिन के बाद लगता है कि मैं जीवन भर दूध में रह सकता। ऐसा लगता है 12 दिन। आप जानते हैं इंडिया में कुछ दूधाधारी बाबा जी हैं, कुछ फलाहारी बाबा जी हैं। जब आप लोग जाएंगे कुंभ मेले में तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे बाबा जी मिलते हैं जो केवल फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते। कुछ ऐसे संत हैं जो केवल दूध पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं। तो हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। अभी आदत है इस बॉडी को केवल रसगुल्ला, रसमलाई खाने की, पिज़्ज़ा खाने की, पास्ता खाने की, तो जल्दी जल्दी भूख लगती है ना। लेकिन शुरू में आपको 3 बार दूध पीने की इच्छा होगी। 12वें दिन आने तक, 11वें दिन आने तक 2 बार में ही आप संतुष्ट हो जाएंगे। और 12 दिन कर लिया तो फिर आपको पता चलेगा कि आप दूध में जीवन भर रह सकते हैं। आपको वो पता चलेगा कि बॉडी जो अडॉप्ट कर लेती है, और भगवान की कृपा भी होती है। बड़ी बात यह है। तो इस पयोव्रत को केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, भगवान की भक्ति के लिए भी किया जा सकता है। नहीं, कोई भी कामना के लिए किया जा सकता है। किसी के हृदय में कोई कामना है या कोई ऐसा असंभव कार्य है तो अच्छे से किया जाए तो कोई भी कार्य संभव है। इस पयोव्रत के द्वारा सब कुछ संभव है। और लेकिन थोड़ा सा कठिन यज्ञ है। 12 दिन आपको छुट्टी लेना पड़ेगी। 12 दिन यज्ञ होता है, 12 दिन कथा सुननी होती है ना। और रात में नाच नाच के कीर्तन करना होता है भगवान के लिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 8वें स्कंद के 13वें अध्याय में मनुओं का वर्णन किया गया है।
8वें स्कंद में 13वें अध्याय के पहले 7 मनवंतर की कथा हो गई है। अब 13वें अध्याय के बाद और आगे के स्कंद में और 7 मनु की चर्चा होती है। तो आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं और जाते हैं। कितने मनवंतर? 14 मनु आते हैं जाते हैं। और एक मनु का शासनकाल कितना होता है? 71 चतुर्युग। चतुर्युग जानते हैं क्या है? कौन बताएगा चतुर्युग क्या है? बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चतुर्युग कहलाता है। तो वास्तव में इस तरह से है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, लेकिन इस चतुर्युग में ओवरलैपिंग हो गई है। तो त्रेता पहले आ गया है ना? लेकिन कैसे है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इस तरह से 4 युग हैं। तो ये जब 71 टाइम्स घूम जाते हैं तो वो एक मनु का शासनकाल होता है ना? और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते जाते हैं। इसका अर्थ ये है, कितने चतुर्युग हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? बताइए। 71 इंटू 14, 71 इंटू 14 कितना हुआ? 1000 हो जाता है, ऑलमोस्ट 1000। तो ऐसा कहा गया है भगवद गीता में, भगवद गीता के में ऐसा कहा गया है, अगर आप पढ़ेंगे भगवद गीता 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम देहो रात्रिविदो जन। भगवद गीता में बताया गया है 8वें अध्याय में कि सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यद ब्राह्मणो विदु। बुद्धिमान लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सहस्त्र युग पर्यंत, एक दिन मतलब कितना होता है? 12 घंटे। 24 घंटे की बात नहीं कर रहे, केवल 12 घंटे की बात। दिन होता है ना, दिन। तो एक दिन में 12 घंटे में चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 1000 बार घूम जाते हैं। और रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदोचन, जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात भी है। बताइए। तो अलग अलग कैलकुलेशन है टाइम का इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में। जहां हम रहते हैं मृत्यु लोक में अलग कैलकुलेशन है, पितृलोक में जाएंगे अलग कैलकुलेशन है, आप जाएंगे स्वर्ग लोक में तो वहां पर अलग कैलकुलेशन, ब्रह्म लोक में अलग। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के लोक में इस तरह से है। तो 7वां मनु कौन है? एक प्रश्न आता है। अभी वर्तमान में 7वें मनु का शासनकाल चल रहा है। 7वां मनु रूल कर रहे हैं। तो 7वें मनु कौन है? श्राद्ध देव जी। ये किसके पुत्र हैं? सूर्य देव विवस्वान के पुत्र हैं। सूर्य देव बहुत ज्ञानी हैं, है ना? उदाहरण दीजिए, कैसे ज्ञानी है सूर्यदेव जी? हनुमान जी के गुरु जी हैं, है ना? किसने बताया? हनुमान जी को उन्होंने शिक्षा दी है ना? गुरु रूप में स्वीकार किया हनुमान जी को। और हनुमान जी कैसे उनसे ग्रहण किए शिक्षा जानते हैं? हनुमान जी गए उनके पास और कहते हैं, आई वांट टू बिकम योर डिसाइपल। उन्होंने कहा, देयर इज नो स्पेस, एवरीथिंग इज बुक्ड, आई कांट टेक यू। उनके रथ में, सूर्यदेव जी के रथ में 60,000 पीपल बैठ सकते हैं एट द सेम टाइम।
तो 60,000 ऋषिगण ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अब जगह नहीं है, लेट हो गए हनुमान जी। तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट फैसिलिटी, मुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए, मैं आपके रथ के बाहर रहूंगा, उड़ते उड़ते शिक्षा लूंगा। तो रथ तो उनका चलता रहता है। आप जानते हैं कि सूर्य देव 24 घंटे में कितनी बड़ी परिक्रमा कर लेते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह, सारे लोग पृथ्वी की। तो सूर्य देव बहुत दूर है और एक बार ऐसे घूम जाता है 24 घंटे में। तभी तो हर 24 घंटे के बाद हमें सूर्य आया पूर्व से पश्चिम में चला गया, एक परिक्रमा कर लेता है। तो उतनी ही तेजी से उनके साथ कौन घूम रहा था? हनुमान जी उड़ रहे थे। और उड़ते उड़ते वो कहते हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है सुनने में। तो वो ऐसे हो गए और देखते देखते वो उड़ रहे थे, उल्टे उड़ रहे थे। और इस तरह से उन्होंने सारे वेद सीख लिए, सारा ज्ञान सीख लिया। आप जानते हैं ना कि कितने ज्ञानी हैं ना, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, सारे गुणों के निधान है ना, और सब प्रकार का ज्ञान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम लोग ऐसा कहते हैं, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण के सागर हैं वो, है ना। ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुग्रीव के साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्यों? कहाँ हनुमान जी, कहाँ सुग्रीव जी, है ना। इसका कारण क्या है? सुग्रीव जी की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि सुग्रीव विवस्वान जी के पुत्र हैं। उन्हें क्या गुरु दक्षिणा दें बताइए? तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मेरा एक पुत्र है, थोड़ा मूर्ख है, स्टूपिड है थोड़ा, जाओ उसके पास जाओ और उसके साथ में रहना, उसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो गए, उसको थोड़ा शिक्षा देते रहते थे, उनको बताते रहते थे कि क्या करना है किस समय। तो मूर्ख है मतलब हमारे लिए मूर्ख नहीं है, सूर्यदेव जी के लिए मूर्ख है ना, उनके स्टैंडर्ड से मूर्ख है। हम लोगों के स्टैंडर्ड से तो वो बहुत ज्ञानी है, भगवान को गले से लगा लिए, भगवान के चरणों, भगवान के मित्र बन रहे हैं। तो फिर हम लोगों के लिए तो अगर हमें उनके चरण कमल मिल जाए तो ये बहुत बड़ा धन्य बात होगी हमारे लिए। तो हम लोगों के लिए नहीं, सूर्य देव जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मूर्ख है। तो ऐसा मत सोचिए कि, तो इस तरह से सूर्य देव जी, हनुमान जी उनके डिसाइपल बने। और उदाहरण बताइए कोई दूसरा सूर्यदेव जी की विद्वत्ता का। इस भगवत गीता में कहा गया है कि इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। भगवत गीता का ज्ञान, इन द बिगिनिंग नॉलेज वाज गिवन टू विवस्वान। सबसे पहले किसको दिया गया था ज्ञान? विवस्वान को दिया गया था। विवस्वान जी ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक भगवत गीता का ज्ञान इस संसार में था, लेकिन चला गया। इसीलिए 5000 साल पहले दोबारा भगवान दे रहे हैं, पुनः भगवान दे रहे हैं। किसको? अर्जुन को दे रहे हैं। तो सूर्य देव जी को ये ज्ञान दिया गया था। और ये मत सोचिए कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में 700 श्लोक वाली भगवत गीता है तो भगवान ने केवल 700 श्लोक की भगवत गीता सुनाई होगी, सूर्यदेव विवस्वान को नहीं। सूर्य देव जी को जो भगवत गीता सुनाई होगी उसमें लाखों लाखों श्लोक होंगे। ये तो हम केवल 700 श्लोकों को भी ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। हम में से कौन है यहाँ जो जानता है 700 श्लोक? नहीं जानते। तो हमारी बुद्धि कम है, इसलिए हमारे लिए 2 मुहूर्त में उन्होंने सुना दी भगवत गीता। ठीक है, आपके लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक लोक है वैकुंठ में, जिस लोक में शाश्वत रूप से इटरनली भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुना, इटरनली, वो रुकते ही नहीं। और वहां पे भीष्म पितामह इत्यादि खड़े हुए हैं। वहां पे जिनको भगवत गीता से प्रेम होता है वो उस लोक में चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको भगवत गीता से प्रेम होता है, जैसे गीता पंडा, वो भगवत गीता पढ़ते रहते हैं। साउथ इंडिया के ब्राह्मण जी भगवत गीता उल्टी लेके पढ़ रहे थे,
है ना, पढ़ना नहीं आया। तो ऐसे लोग जिनको भगवत गीता से प्रेम है वो कहाँ चले जाते हैं? उस लोक में चले जाते हैं जहाँ भगवान इटरनली भगवत गीता सुना रहे हैं, वैकुंठ में। और वहाँ जाके वो इटरनली लोग वहाँ खड़े हुए युद्ध करने के लिए, इस तरफ खड़े हुए, लेकिन युद्ध होता नहीं है वहाँ। तो भगवत गीता रिलीज हो रही है, सब लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, लगातार सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और भगवान सुनाते जा रहे हैं। तो सूर्य देव जी के पुत्र हैं श्राद्ध देव जी इस मनवंतर में, मनु महाराज। और इस मनवंतर में इंद्र कौन है? पुरंदर। इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, और उस पोस्ट पे कौन है? पुरंदर है। महाराज पुरंदर बैठे हुए हैं। ये थोड़ा लोभी टाइप के हैं इस बार के इंद्र जो है ना, इसलिए बार बार ये भूल जाते हैं भगवान की भक्ति को। आप जानते होंगे सांवर्तक बादलों को भेज दिया था भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो खुश होना चाहिए उनको, है ना। गोवर्धन स्वयं भगवान है, भगवान का एक्सपेंशन है, लेकिन वो क्रोधित हो गए और किसको बुलाया? डायरेक्ट संवर्तक बादलों को बुलाया, जो सबसे भयंकर बादल है, वर्षा करने वाले हैं। सांवर्तक अग्नि भी होती है, जैसे सांवर्तक बादल है, वैसे सांवर्तक अग्नि भी होती है, जो प्रलय के समय आती है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर अग्नि लग जाती है और ये ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाता है अंदर ना। फिर उसके बाद 1000 सालों तक वर्षा होती है, फिर आधा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, फिर भगवान उसके ऊपर शयन करते हैं, फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर से क्रिएशन होती है। तो इस प्रकार से पुरंदर शासन चलाते हैं, सारे देवताओं के साथ में सबको भगवान के विषय में, भगवान की भक्ति में लगाना और सब लोगों की रक्षा करना, त्रिभुवन की रक्षा करना। त्रिभुवन का अर्थ क्या है? ऊपर के लोक, मध्य लोक और नीचे के लोक, इसको त्रिभुवन कहा जाता है। तो भक्तों को याद रखना चाहिए ऊपर कौन कौन से लोक हैं, नीचे कौन कौन से लोक हैं। तो ऊपर कौन से लोक हैं? भू भुव स्वः मह जन तप और सत्यम, ये सब लोग ऊपर। नीचे कौन से लोक हैं? महातप, पाताल। तो ये सब नीचे के लोग हैं। तो इन सब लोगों के लोगों की रक्षा करना, इस पृथ्वी की भी रक्षा करना, ये किसका कार्य है? ये इंद्र का कार्य है। इंद्र के पास बहुत शक्ति होती है, भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है, और इन्हें भगवान का भक्त होना चाहिए, और होते भी हैं ये भगवान के भक्त। इसलिए भगवान बारंबार आते हैं और आकर इनकी रक्षा करते हैं। तो जैसा आपने सुना कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक है। सप्तमो वर्तमानो मनो विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः। सप्तमो वर्तमानो, वर्तमान में जो मनु है वो विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव जी हैं, ऐसा कहा गया है। राजन इंद्र पुरंदर, और राजन कौन है? वो पुरंदर नाम के राजा हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग से शासन चलाते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा एक संग्राम हुआ है, एक बहुत बड़ी फाइट हुई है। जैसे इस पृथ्वी में सबसे बड़ी वॉर कौन सी हुई है? महाभारत की वॉर हुई है, सबसे बड़ी। और कोई दूसरी वर्ल्ड वॉर इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी बड़ी महाभारत की वॉर हुई। क्यों? कितने लोग आए थे युद्ध करने के लिए? नंबर जानते हैं कितने? 64 करोड़ लोग आए थे युद्ध करने के लिए, और कितने बचे? 11 बचे, केवल 11 बचे। तो सब खत्म हो गया, देखा जाए तो सब चलेगा। 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत की वॉर में, बताइए तो कितनी भयंकर वॉर होगी। इसी तरह की भयंकर वॉर हुई थी देवासुर संग्राम। 2 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, 2 अध्याय में। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि देवता भी ऑलमोस्ट हार गए थे।
पहले तो देवता जीत रहे थे, तब तक बलि महाराज अदृश्य हो गए और बलि महाराज ने अदृश्य होकर माया का प्रयोग किया। देवताओं के पास भी माया होती है, असुरों के पास भी माया होती है, लेकिन असुरों के पास भयंकर माया होती है। तो उन्होंने अपनी भयंकर माया का प्रयोग किया। तो इस माया के द्वारा रक्त की वर्षा होने लगती है, हड्डियों की वर्षा होने लगती है, चारों तरफ से फ्लड हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सुनामी आ रहा है चारों तरफ से। तो लोग डर जाएंगे ना देख के, तो देवता सब डर, पता ही नहीं चला कि अब करें क्या। अग्नि बरसने लगी, ऊपर से बरस रही थी अग्नि और चारों तरफ से सुनामी आ रहा था। और बड़े बड़े नखों वाली, बड़े बड़े मुख वाली और दांतों वाली, जिनके बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, ऊपर भी तांबे के जैसे ऊर्ध्वपुंड बाल थे, तांबे के जैसे बहुत नुकीले। यदि बाल से ही किसी को मार दें तो कोई मर जाए। बहुत नुकीले तार के जैसे बाल जिनके थे। तो ऐसे राक्षस और राक्षसी वो सब प्रकट हो गए और टूट पड़े उनके ऊपर, नंगे, जो वस्त्र भी नहीं पहनते, बहुत कुरूप जिनका शरीर होता है। तो वो सब आ गए खाने के लिए देवताओं को। तो देवता बस नष्ट होने लगे, सारे के सारे देवता। वो समझ भी नहीं पाए कि हम करें क्या। और इस प्रकार की माया, जोरों से हवा चलने लगी, भयंकर शब्द होने लगा, आवाज आने लगी, बिजली चमकने लगी। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो कोई किसका याद करे, किसको याद करे? भगवान को याद करे। भगवान को याद करने से सारी विपत्ति चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इंद्र ने ठीक किया कि वो भगवान को याद किया। और किसी, वो समझ गए कि अब और कहीं को याद करने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी को, शिव जी को याद करने, अब तो भगवान को ही याद करना पड़ेगा, है ना। भगवान का ही तुरंत ध्यान करना पड़ेगा कि वही बचा सकते हैं। वो कई बार गए हैं ब्रह्मा जी के पास ना, कई बार गए हैं शिव जी के पास, तो सब उनको लेके भगवान के पास ही जाते हैं। तो उस समय उन्होंने सीधे भगवान को याद किया, भगवान वहां तुरंत प्रकट हो गए। देवताओं से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं भगवान। क्यों प्रेम करते हैं देवताओं से? क्या कारण है कि भगवान देवताओं से प्रेम करते हैं? कौन बताएगा? पीछे से बताइए क्यों प्रेम करते हैं? भगवान देवताओं से क्यों प्रेम करते हैं? भक्त होते हैं, सरल सी बात है ना। विष्णु भक्त स्मृता देव आसुरस्त द्विपर्य। जो द्वेष करते हैं भगवान से वो कौन है? असुर है, राक्षस है। दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, आप लोग पढ़ लीजिए। उसका विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन आप भगवद गीता में पढ़ लीजिए दैवी गुण और आसुरी गुण, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों भगवान भक्तों से स्नेह करते हैं। क्योंकि भक्तों में अच्छे गुण होते हैं, बढ़िया गुण होते हैं। वो भगवान का भजन कर, सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भगवान के भक्त होते हैं, डिवोटेड होते हैं। तो जो आपसे स्नेह करता है, स्वाभाविक आप भी उससे स्नेह करते हैं। जो आपसे शत्रुता करता है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो भगवान तो सबके प्रति समान रहते हैं, लेकिन भक्तों का पक्ष लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो डिवोटेड हैं, वो श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी भी कथा है इसमें थोड़ी सी, प्रहलाद महाराज की इस संदर्भ में। तो लेकिन ये देवता कभी कभी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि स्वर्ग लोक में बहुत ऐश्वर्य है, इसलिए भूल जाते हैं। आप इस कथा में ये भी सुनेंगे, है ना। जब हमें अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, है ना, लोग फिजी में रहते हैं, लोग इंडिया में रहते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि जाएंगे, विदेश जाएंगे, थोड़ा सा धन कमाएंगे और भगवान का भजन भी करेंगे। विशेष करके भक्त लोग सोचते हैं भगवान का भजन भी करेंगे। लेकिन जब धन आने लगता है तो भगवान को भूल जाते हैं, है ना। अरे देवता भूल जाते हैं, हम मनुष्यों की बात ही क्या करें। देवता भी भूल जाते हैं। ऐश्वर्य मिलने के कारण, ऑपुलेंस मिलने के कारण भूल जाते हैं भगवान को। फिर भगवान कभी कभी याद आते हैं, है ना। तो लेकिन भगवान सदैव स्मरण रहना चाहिए, सदैव भगवान का ध्यान रहना चाहिए। तो बहुत भयंकर युद्ध में भगवान की याद की, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर क्या किया? रक्षा की।
तुरंत भगवान ने वो माया, जैसे ही भगवान आए माया अपने आप गायब हो गई, है ना। जितनी भी ये तंत्र मंत्र जो भी प्रकार की, सब प्रकार की माया, वो सब भगवान उनके स्वामी हैं। इसलिए भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। सारे योग के और सारी सिद्धियों के स्वामी हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। ये सिद्धियां आती कहाँ से? भगवान से आती हैं। तो भगवान सारे सिद्धियों के स्वामी हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, कामा, वसायिता, प्रकामा, जितनी भी सिद्धियां हैं इन सब के भगवान स्वामी हैं। तो माया गायब हो गई, भगवान को देख के चली गई। और इसके बाद कुछ असुर आए भगवान से युद्ध करने के लिए। तो जो असुर भगवान से युद्ध करने के लिए आए मारे गए। एक कालनेमी नाम का असुर था, मारा गया। एक माली नाम का असुर था, एक सुमाली नाम का असुर था, वो भी मारा गया। माल्यवन नाम का एक असुर था, वो भी भगवान के द्वारा मारा गया। किसी को भगवान ने चक्र से मार दिया। कालनेमी ने तो सीधे त्रिशूल भगवान की तरफ फेंका। भगवान गरुड़ में बैठ के आए थे, तो त्रिशूल फेंका और त्रिशूल गरुड़ की तरफ आ ही रहा था। भगवान ने उसको हाथ से ऐसे पकड़ लिया। त्रिशूल, ये बहुत शक्ति होती है ना असुरों के पास। वो फेंकेंगे तो कितनी तीव्र गति से जाएगा, लेकिन भगवान ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ लिया और भगवान ने उसी को वापस मारा और जाके वो लगा कालनेमी को, वहीं मर गया। माली सुमाली आया तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, वो भी मर गया। फिर उसके बाद एक गदा लेके एक और राक्षस आया, तो भगवान ने उसके तरफ भी सुदर्शन फेंका, वहीं गला कट गया, वहीं मर गया। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, भगवान को आने की भी जरूरत नहीं है। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे केवल संकल्प कर लें। वैकुंठ में अपने जगत में बैठे बैठे संकल्प, अरे संकल्प से सृष्टि करते हैं, संकल्प से पालन करते हैं, संकल्प से संहार करते हैं। तो संकल्प कर लें किसी राक्षस को मारने का, वहीं मर जाएगा। दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा था ना चक्र, भगवान का ऑटोमेटिक आ गया था। वो आज्ञा दे के रखिए तो अपने आप आ गया था, कुछ करना नहीं पड़ा था, है ना। अमरीश महाराज जी के चरणों में अपराध किया, कृत्या उत्पन्न की और प्रकट हो गया चक्र। क्योंकि भगवान ने आदेश देकर रखा है सुदर्शन चक्र को कि यदि कोई मेरे भक्तों को कष्ट दे उसे नष्ट कर दो। तो भगवान तो संकल्प मात्र से असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन क्यों आते हैं भगवान इस जगत में? युग युग में जन्म लेते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। ना कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। क्यों आते हैं भगवान? भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनां, कुछ लीला करें जिससे भक्तों को आनंद मिलेगा। भक्त उस लीला को पढ़ेंगे, उस लीला को गाएंगे तो आनंद मिलेगा। हम गा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आनंद छाया हुआ है। प्रभुपाद जी गाते हैं, अनेकानेक भक्त सुनते हैं, आनंद छाया हुआ है। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के 18 स्कंद में? भगवान की लीलाएं, आनंद आता है पढ़ने में। और कभी कभी पढ़ने बैठ जाओ तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिया ही इसलिए। लीला पुरुषोत्तम भगवान इसलिए आके लीला करते हैं आनंद के लिए, कि सबके हृदय में आनंद छाए। जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, है ना, जो पूरी नहीं हुई हैं, और पूरी ना होने के कारण मनुष्य दुखी है। उसको कहते हैं क्षोभ। सबके हृदय में क्षोभ है, इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण। अलग अलग लोगों के हृदय में अलग अलग प्रकार का क्षोभ है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से ये क्षोभ इत्यादि गायब हो जाता है। इसे तो 5 महाप्रभाव हैं भगवान की कथा के, तो उसमें से एक क्या है? क्षोभ गायब हो जाता है। तो भगवान आए, भगवान ने आके असुरों का विनाश किया। देवता सब गिर पड़े थे, मूर्छित हो गए थे, मर गए थे। भगवान ने दृष्टि डाल के उनको जीवित कर दिया, जीवित हो गए। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं के पास पहले से ज्यादा शक्ति आ गई और वो मारने लगे असुरों को, वह वध करने लगे। इंद्र अपने वज्र से असुरों का वध करने लगे, यहां तक कि बलि महाराज को भी गिरा दिया। बलि महाराज मूर्छित होकर गिर गए
और राक्षस इस तरह से मर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि लगता है कि आज दानव सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, सब आज ही खत्म हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, नहीं है जाओ अभी रोको युद्ध को, अभी सबके मरने का समय नहीं आया है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, वामन देव जी को जन्म लेना है, वामन देव जी को अपीयर होना है। तो आए नारद जी ने आके इंद्र से कहा बस बस हो गया, बहुत हो गया। तो इंद्र मान गए। कोई राक्षस होता तो कहते अरे ऐसे कैसे, जाओ अभी किनारे हटो, अभी मुझे मारना है इनको, अभी ये करना है वो करना है ना। ये राक्षस नहीं मानते किसी को। तो लेकिन अब नारद जी को फिर भी मानते हैं राक्षस, क्योंकि उनको पता चलता रहता है ऊपर क्या चल रहा है, तो कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं देवता, तो इसलिए थोड़ा मानते हैं नारद जी को, लेकिन और दूसरे ऋषियों को नहीं मानते। तो नारद जी से कहने से देवता मान गए और देवता चले गए। और इसके बाद बलि महाराज के मित्र, उनके सेवक उनको उठा के ले गए एक दूसरी गुफा में, और वहां पे शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी कौन है? भृगुवंश में जन्मे हैं। किस जन्म में, किस वंश में आए हैं? भृगुवंश में। बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, इतने क्वालिफाइड हैं कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में मैं वसुदेव हूँ, है ना, भगवान ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि मैं धनंजय हूँ, अर्जुन, है ना, कहते हैं कि मैं ऋषि हूँ, और फिर कहते हैं कि मैं कवि नाम उसना कवि, ये कहते हैं। विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। शुक्र नीति बड़ी फेमस है ना। विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इसी केवल बात से आप जान सकते हैं कि वो कितने विद्वान होंगे। वो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान, लेकिन कुछ कमियां होंगी उनमें भी, है ना। तो देवताओं ने उनको स्वीकार नहीं किया, देवताओं के द्वारा वो स्वीकार नहीं हुए। तो इसीलिए वो पहुंच गए असुरों के पास, और वो मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। अगर कोई मर जाए ना तो उसको जीवित कर सकते हैं, ऐसी विद्या जानते हैं शुक्राचार्य जी। तो जितने राक्षस मर गए थे, लेकिन जिनके सिर वगैरह नहीं कटे थे, किसी के तो हाथ पैर पूरे कट गए थे, किसी का सिर कट गया था, किसी का पूरा शरीर नष्ट हो गया, उनको जीवित नहीं किया। लेकिन जिनके अभी अंग भंग नहीं हुए थे, हाथ पैर सिर सही सलामत था, उन सबको जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद फिर इस बात को कभी बलि महाराज भूले नहीं। प्रहलाद महाराज के आने के बाद प्रहलाद महाराज जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो संस्कार है, तो उपकार हुआ, भूले नहीं। उनको अपने गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनकी बहुत सेवा की, है ना। ऐसा लिखा गया है कैसे सेवा की, केवल हाथ पैर दबा की सेवा नहीं की, बहुत धन दिया, है ना। यदि किसी के पास धन ना हो तब तो और तरह से सेवा करे, खिला पिला के सेवा करे। तो यहाँ पे विशेष करके लिखा गया है कि धन दिया। कुछ लोग ऐसे आजकल के ब्राह्मण कहते हैं, तन से सेवा सब करें। क्या कहते हैं? तन से सेवा सब करें, धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। ऐसा कहते हैं आजकल के ब्राह्मण कि अगर कोई धन से सेवा करता है वही सच्चा सेवक है, और दूसरे सच्चे सेवक नहीं। लेकिन जिसके पास जो है उससे सेवा करे। किसी के पास धन है तो गुरु के धन से सेवा करे, और किसी के पास धन नहीं है तो उनके पैर दबाए, जो कुछ है उसी से सेवा करे। कोई भोजन बनाने में एक्सपर्ट है तो भोजन बना दे ले जाके, कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देगा इनको। तो बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, खुश हो गए तो उन्होंने एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। विश्वजित, तो विश्वजित का अर्थ क्या होता है कि जिस यज्ञ को करने के बाद उसे पूरे विश्व में कोई हरा ना सके, पूरे विश्व का जो विजेता हो जाए। तो भृगुवंशी ब्राह्मण आए और उन्होंने आके यज्ञ कराया, तो बहुत अच्छे से यज्ञ हुआ, बहुत बढ़िया से इन सब ने यज्ञ किया। और देवता वहां क्या कर रहे थे?
देवता सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए थे। बड़े बड़े गंधर्व, बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य कर रही थी इंद्र के सामने। वो अपने सिंहासन में बैठे हुए थे और वो गा रहे थे कि अरे ये तो यही पूरे जगत के राजा हैं, सबका पालन करने वाले हैं, इस तरह की बड़ाई कर रहे थे। तो वो सब लगे हुए थे। यहाँ तक कि एक बार बृहस्पति जी उनके राजसभा में आए तो इंद्र अपनी बड़ाई सुनने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने गुरु की तरफ देखा नहीं, सम्मान नहीं किया। उनका अरे हमारे राज्य में तो साधु आते जाते रहते हैं, ऐसे बहुत साधु आते हैं, बहुत साधु जाते हैं, गुरु हैं देवताओं के, तुरंत आसन से खड़े हो जाना चाहिए और उनको बिठाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। वो बैठे थे, सुन रहे थे। तो यहीं पर उनका सारा यश समाप्त हो गया। जो साधुओं की सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है। जो गुरु को नेग्लेक्ट कर देता है उसे जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो क्या हो, उस गुरु जी चले गए, वहां से चुपचाप चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप चले गए। और जब चले गए तब रियलाइज हुआ कि हमसे क्या हो गया, हमने गुरु अपराध कर दिया बहुत बड़ा। इसका अर्थ है कि स्वर्ग हमारे हाथ से अब निकल जाएगा, सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। देखिए एक श्लोक में कहा गया है कि स्वर्ग लोक में भगवान की भक्ति नहीं होती। आप लोग चाहते हैं आपके पूर्वज स्वर्ग जाएं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लिख देते हैं नीचे स्वर्गवासी ऐसे 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 का नाम लिख देते हैं। लेकिन भक्तगण, किसी भी भक्त से पूछ लिया, किसी नए भक्त से भी पूछ लीजिए जिसने इसी वीक ज्वाइन किया है, स्वर्ग जाना है, डू यू वांट टू गो हेवन? बोलेगा नो वे, आई डोंट वांट टू गो हेवन, मैं तो वैकुंठ जाना है, वहां जाना है। यदि गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। देखिए भागवत में 5वें स्कंद के कैंटो 5 चैप्टर 19 और वर्स नंबर 24, इसमें क्या कहा गया है? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पद। बहुत अच्छा श्लोक है, हमारे पीछे एक बार बोलिए। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पद, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पद, न साधवो भागवताश्रयाश्रय, न साधवो भागवताश्रयाश्रय, नयत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, नयत्र यज्ञेश मखामहोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वैससेविता, सुरेश लोकोऽपि न वैससेविता। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप आपकी भागवत में मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए। आप लोग के दूसरों के प्रीचिंग के लिए बताने के लिए बहुत अच्छा है। कैंटो 5 चैप्टर 19 और वर्स नंबर 24। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, वैकुंठ में भगवान की कथा रूपी सुधारस नदी नहीं बहती, वो इस पृथ्वी पर ही होती है। प्रमाण क्या है? इसीलिए तो देवतागण अमृत का कलश लेकर आए कि हमें कथा सुना दीजिए। वहां लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं, वहां कथाएं इत्यादि नहीं होती। कथा कहाँ होती है? वो तो इस मृत्यु लोक में होती है। परीक्षित महाराज जैसे राजा कथा सुनते रहते हैं, अमरीश महाराज जी जैसे राजा कथा सुनते रहते हैं, जितने भी भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो सब कथा सुनते रहते हैं। तो नयत्र यज्ञ कथा सुधा पदा, वैकुंठ में तो होती हैं, लेकिन स्वर्ग में भगवान वैकुंठ की, वैकुंठ का अर्थ है भगवान। वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई एंजाइटी नहीं है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वैकुंठ भगवान का एक नाम है, वैकुंठ। और भगवान ने एक अवतार भी लिया था, वैकुंठ एक अवतार भी लिया था। भगवान वैकुंठ आए थे इस पृथ्वी में अवतार लेकर, उनकी कथा का भी वर्णन है। तो उनका नाम ही है वैकुंठ। स्वर्ग लोक में
वैकुंठ की अर्थात भगवान की कथाएं नहीं होती हैं। न साधवो भागवतास तदाश्रय, जहां पर साधुओं ने भी भगवान का आश्रय नहीं लिया है ना। बड़े बड़े साधु अच्छे लोग भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे, अप्सराएं नाचती रहती हैं, गाती रहती हैं और वो अप्सराओं के साथ लीला करते रहते हैं। बहुत प्रकार के कुंड हैं वहाँ पर, गंगा जी के तट हैं बहुत प्रकार के, तो बस जलाशयों में क्रीड़ा चलती रहती है देवताओं के साथ अप्सराओं की। बहुत बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं, लंबी लंबी क्रीड़ाएं चलती रहती हैं और अमृत पीते रहते हैं। तो सतोगुण है लेकिन उसके बाद भी भगवान की कथा नहीं होती है, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, है ना। न यत्र यज्ञैश मखा महोत्सव, जहाँ पे मखा महोत्सव, अरे जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, वो सब तो यहाँ होते हैं, रामनवमी वो तो यहाँ होते हैं, भागवत महायज्ञ वो तो यहाँ चलता है, इस पृथ्वी में चलता है, जगह जगह में चलता है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? इस पृथ्वी में लगता है। अनेक प्रकार के साधु इस पृथ्वी में घूमते रहते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, है ना। अब जाइए इंडिया, अभी जाइए, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है मोदी जी की कृपा से, और पूरे भारत में हर जगह कथाएं चल रही हैं। इस समय सब जगह कथाएं चल रही हैं, हर जगह यज्ञ हो रहे हैं, है ना। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार लोग लगे हुए हैं भगवान की पूजा में। जितने राक्षस थे वो भी धीरे धीरे भगवान के भक्त बन रहे हैं। यदि ये नहीं करेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वो सब अब धीरे धीरे करने लगे हैं कि हम करेंगे तभी लोग हमें वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अजीब बात है ना। सुरेश लोकोपि न वैस सेविताम, ऐसे सुरेश लोक रहने योग्य नहीं। ये देवता कह रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं कह रहा। देवता स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे सुरेश लोक रहने योग्य नहीं है। तो फिर हम क्यों अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक भेजना चाहते हैं? कहाँ भेजना है उनको? वैकुंठ भेजना है। वैसे ही इस समय बहुत भूत भरे पड़े हैं संसार में क्योंकि संस्कार कोई करना नहीं जानता है, मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक होता नहीं है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भूत इस संसार में भरे पड़े हैं, बहुत बहुत भूत। इसलिए नजर लगने का डर है, कई प्रकार का डर है। तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, जिससे सबका उद्धार हो जाए। प्रहलाद महाराज क्या कहा उन्होंने भगवान से, नरसिंह देव जी से? हमारे पिता को मुक्त कर दीजिए। ये तो राक्षस है, कोई चांस नहीं है वैकुंठ जाने का। भगवान क्या कहते हैं? ये मांगने की जरूरत नहीं है प्रहलाद, पहले ही मैं तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार कर चुका हूं। पहले ही तुम्हारी भक्ति के कारण कर चुका हूं ऑलरेडी उद्धार। 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी ऊपर की, 7 पीढ़ी नीचे की और 7 पीढ़ी वर्तमान की। आपकी चाचा, मामा, सब बच्चे सब मुक्त हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने से, है ना। तो इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति करना है। देखिए विश्वजित यज्ञ कराया, विश्वजित यज्ञ करने से क्या हुआ ये आप कल सुनिए कि विश्वजित यज्ञ करने के बाद बलि महाराज का तेज कैसे बढ़ा, उस यज्ञ से क्या क्या निकला, उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ और किस प्रकार से उन्होंने स्वर्ग में चढ़ाई की और देवता भाग गए डर के, किस तरह से भाग गए, कितने लंबे समय तक उन्होंने शासन किया स्वर्ग में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पयोव्रत का प्रारंभ होगा। तो पयोव्रत के बारे में आप जानेंगे, जिस व्रत को करने से कृष्ण भावना संतान मिलती है और इसके साथ मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो हम सबको तो करना है हरे कृष्ण महामंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान को प्राप्त करना है। स्वर्ग नहीं जाना बल्कि कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। इस महायज्ञ में आते रहिए, 7 दिनों तक आप लोगों को देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, कथा कहने में आनंद आएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी सुनने में आनंद आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद्
भागवतम अमल पुराण की जय। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गौर निताय की जय। गौर प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय। His Grace Achal Krishnadas Prabhu ji ki जय। Thank you so much, Prabhu, for such a divine and experience lecture. As we have heard many times before, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. So thank you so much, Prabhu, for this Lava Matra Sadhu Sangha that you have given us today. We can't wait for the 7 days. The second day to start, and we don't want the 7 days to be over. Isn't that right? That's right. 3 big Hari Bols. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much, Prabhu. Sandal pranam to you. All glories to your divine lecture. Hare Krishna. भागवत की आरती होगी और फिर नरसिंह प्रेयर और उसके लिए फिर सबके लिए प्रसादन। प्रभु वो जो पेपर ले सामने ही रखा था जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी। जब 7 दिन की भागवत कथा की जाती है तो थोड़ी सी आरती की जाती है भागवत की, और उसके बाद फिर नरसिंह प्रेयर और प्रसाद। किसी कोई प्रश्न है? हमने पूछा नहीं क्योंकि समय ज़्यादा ले लिया आज, थोड़ा सा महात्म भी है, लेकिन कल भी पूछ सकते हैं आप अगर आपसे भी कोई प्रश्न हो। कल हम थोड़ा 10 मिनट पहले ख़त्म कर देंगे प्रश्न के लिए। कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे तक हो जाए, इसके बाद फिर हम हमेशा टाइम से शुरू करके टाइम से ख़त्म कर देते हैं, तो आप लोगों को देर नहीं हो जाए। एक दे दीजिए। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, कलिमल मथन प्रताप निवारिणी, कलिमल मथन प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख हारिणी, तुम हो सधि हरि चरित गान की, तुम हो सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 की धर्म भक्ति विज्ञान का
नमस्ते